6.2 ਦਾ क्वेश्चन नंबर 6 in figure 6.21. So here is figure. A, B, C are points on OP. OP ਤੇ point A ਪਿਆ ਹੋਇਆ and OQ ਤੇ point B ਪਿਆ ਹੋਇਆ and OR ਤੇ point C ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है, such that जो AB है that is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC parallel to QR, ठीक है। इनू करांगे, देखो इनू कितना करांगे। तो गिवन की है सानू, गिवन है साडे कोले जो AB है, AB is parallel to PQ, AB parallel PQ and जो AC है that is parallel to PR, AC is parallel to PR, ठीक है। To prove और to prove करन नूं की कहंदा स्टेटमेंट दे विच, अगर मैं इस BC नूं भी ज्वाइन कर लवां, BC नूं ज्वाइन कर लवां तो प्रूव करन नूं कहंदा BC पैरेलल प्रूव करो QR दे। तो इहदे च एक कंस्ट्रक्शन करांगे। कंस्ट्रक्शन दे विच की है, कंस्ट्रक्शन दे विच करांगे ज्वाइन BC नूं ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये तुहाडी कंस्ट्रक्शन होगी। हुण नैक्सट आंदा प्रूफ, क्योंकि जिहड़ी 6.2 है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ते उहदे कन्वर्स पार्ट दे नाल हैगी आ। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं। उस कंसैप्ट नूं ध्यान च रखते हुए ट्रायंगल लैंदे हैं OPQ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OPQ देखिए ध्यान देना केड़ी साइड किहदे पैरेलल है, जो AB है दैट इज पैरेलल टू PQ। क्यों लिखा है, गिवन है, खुद तो नहीं लिखा, गिवन है तां लिख रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, उस तो बाद हुण अगर एक ट्रायंगल दे विच, ठीक है, अगर मैं कलर कर ला, ठीक है, इस ट्रायंगल दे विच एक साइड, ठीक है, थर्ड साइड दे पैरेलल होवे तां वो बाकी दो साइड्स नूं की करदी है, इक्वल प्रोपोर्शन च डिवाइड करदी है। देयरफॉर बाय बेसिक proportionality theorem, basic proportionality theorem की आ गया साडे कोले OB ratio BQ is equal to OA ratio AP, ठीक है। इनू पाओ रिजल्ट नंबर 1। हुण सिमिलरली जो साडे कोले ट्रायंगल OPR है, सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR एज जो AC है दैट इज पैरेलल टू PR, तो सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो साडे कोले की आ जाऊगा, साडे कोले आ जाऊगा OC डिवाइडेड बाय CR, OC divided by CR is equal to OA divided by AP, ठीक है। तो ये आया थोड़े को रिजल्ट नंबर 2, ठीक। हुण की करो 1 ते 2 नूं कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 की आया लेफ्ट साइड की सी, दोनों की लेफ्ट राइट साइड सेम सी, तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। तो की लिखा मैं OB डिवाइडेड बाय OQ इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR, ठीक है। हुण देखो की है, की आ गया अल्टीमेटली साडे कोले OB डिवाइडेड बाय BQ इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR। हुण की हुंदा पिया, एक लाइन BC है जो की करदी भी दो साइड्स ट्रायंगल दी नूं दो सेम रेशियो च डिवाइड कर दी भी, तो की होगा थर्ड साइड दे पैरेलल होगी। मैं की लिखा देयरफॉर बाय कन्वर्स, कन्वर्स हो गया ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की आ जाएगा BC is parallel to QR.
Question number 7 is prove that a line draw through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects a third side. According to statement ਆਪਾਂ ਇੱਕ triangle draw ਕੀਤੀ ABC ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਦਾ midpoint ਲਿਆ D ਤੇ D ਤੋਂ BC ਦੇ parallel line draw ਕੀਤੀ DE. To prove ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ E is the midpoint of AC. ठीक है, इट मीनस ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ AE EC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ DE ਪੈਰਲਲ BC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? equal ratios ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰੂਗੀ। तो in triangle ABC because DE parallel to BC so applying basic proportionality theorem ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ AD divided by DB is equal to AE divided by EC। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ D ਹੈ that is the midpoint of AB it's also given तो AD divided by DB ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 is equal to AE divided by EC ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ EC is equal to AE। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਣ ਗਿਆ E is the midpoint of AC। क्वेश्चन नंबर 8 using theorem 6.2 कोई थ्योरम है पीछे। ठीक है, स्टेटमेंट की है prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side। तो ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 6.2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ, ਇੱਕ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो देखो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। तो 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ the line joining the midpoints of any two sides of the triangle मतलब ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ midpoint ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ DE ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ D ਤੇ E ਕੀ ਹੋਣ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ। तो DE मिड पॉइंट है लिख ले किदे किदे D है AB दा E है AC दा। तो जेकर D मिड पॉइंट है ਇਹਦਾ मतलब की होगा जो साइड AD है वो BD ਦੇ इक्वल होगी तो जो साइड AC है वो EC ਦੇ इक्वल होगी। ठीक है, गिवन हो गया। टू प्रूव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? DE ਪੈਰਲਲ BC। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਰੋ ਲਗਾਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ D is midpoint of AB which implies AD is equal to DB। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ? ਇਟਸ ਗਿਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ DB ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ AD divided by DB is equal to 1। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰਲੀ E ਵਾਸਤੇ similarly as E is the midpoint of AC। ठीक है जी, which implies ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ AE divided by EC is equal to 1। AE divided by EC is equal to 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ AC therefore AE is equal to EC। ठीक है, तो एक चीज लिखते हुए दूसरी चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ दोनों दी लेफ्ट साइड की है, दोनों दी राइट साइड की है सेम है तो कंपेयरिंग 1 and 2 कंपेयरिंग 1 and 2
तो की आ गया, जेकर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। मेरे को आ गया AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। लो तो अल्टीमेटली साडे कोले असीं कित्थे पहुंच गए, असीं क्या जेड़ा D पॉइंट है, ठीक है, जेकर असीं ओदे साइड AB दी रेशियो लईए AD डिवाइडेड बाय DB, दूसरे पासे ये रेशियो किहदे इक्वल है AE डिवाइडेड बाय EC। तो एक ट्रायंगल ABC दे विच अगर दो साइड्स सेम रेशियो दे विच हुंदियां ने तां लाइन की हुंदी है, पैरेलल हुंदी है। तो की आ गया, फ्रॉम कन्वर्स आ गया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो नेक्स्ट असीं किद्दां लिखांगे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साडे कोले की आ जाऊगा, साडे कोले असीं लिखांगे जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC। तुसीं चाहो तो लिख भी सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो इदां तुहाडे कोले ए है क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है, ABCD is a trapezium in which AB parallels CD and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO ratio BO is equal to CO ratio DO। तो ट्रपेजियम एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। ट्रपेजियम ਦੀਆਂ दो साइड्स पैरेलल ਹੁੰਦੀਆਂ, दो साइड्स नॉन पैरेलल ਹੁੰਦੀਆਂ। पैरेलल साइड्स ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ AB ਤੇ CD, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O। ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, A ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ B ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, D ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O, ठीक है। तो प्रूव की करना है, प्रूव ये करना AO रेशियो BO इज इक्वल टू CO रेशियो DO, ठीक है। तो ये गिवन की हो गया, गिवन हो गया साडे कोल एक ट्रपेजियम है ABCD इन विच AB पैरेलल CD एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो गिवन लिख दें असी, तो असी गिवन लिख लिया कि ट्रपेजियम ABCD साडे कोल है जिहदे विच दो साइड्स पैरेलल है ते डायगोनल्स O ते इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव भी लिख लिया जो उन्होंने कहा सी। एक कंस्ट्रक्शन की अपने कोलों, कंस्ट्रक्शन की असी क्या, O तो एक पॉइंट लो P ते उन्होंने ज्वाइन करो, पॉइंट P लेना AD ते, और ज्वाइन इस तरीके ना करना कि जड़ा OP है ये AB दे भी पैरेलल होवे ते OP CD दे भी पैरेलल होवे, ठीक है। हुण देखो प्रूफ किद्दां करांगे इहदा। प्रूफ दे विच सब तो पहला जिहड़ी ट्रायंगल असी लैनी है, ठीक है, वो ट्रायंगल लावांगे असी, आज इन्हूं शेड कर देंगे मैं, ACD, ठीक। तो इन ट्रायंगल ACD की होया साडे कोले, इन ट्रायंगल ACD दे विच जो OP है दैट इज पैरेलल CD। ये सी कित्थों लिखिया, इट्स बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। सारे रीजन देने जरूरी होंगे। इट्स बाय कंस्ट्रक्शन कि जिहड़ी OP है पैरेलल CD दे है। तो जदों एक ट्रायंगल दे विच एक साइड दूसरी साइड दे पैरेलल होवे तो बाकी जिहड़ियां बचदियां दो साइड्स उन्होंने इक्वल रेशियो च डिवाइड कर दी, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की आ गया साडे कोले, की आ जाऊगा इधर वाली साइड दी रेशियो AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय OC, ठीक है। लो लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उस तो बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हुण जिहड़ी नेक्स्ट असी जिहड़ी ट्रायंगल लैनी है वो लैनी है असी ADB, ठीक। केड़ी ट्रायंगल, ADB। तो इन ट्रायंगल ADB OP केड़े पैरेलल है, OP इज पैरेलल टू AB, अगेन इट्स बाय कंस्ट्रक्शन। सो की आ गया साडे कोले, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साडे कोले आ जाऊगा इधर AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OD। लेट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हुण की करो, 1 ते 2 नूं कंपेयर कर लो। तो जो असीं 1 2 नूं कंपेयर करते पे लैफ्ट साइड इक्वल है, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। साडे कोल आ गया AO डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OD। हुण की करो, हुण चाहिदा की है,
जो जड़ा असी प्रूव करना है सानू AO डिवाइड बाय BO चाहिए, तो BO नू हेठा ले आओ, ठीक है। तो BO इधर ले आ जाओ, OC उधर ले आ जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन्हों या क्रॉस अरेंज कर लो। AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू OC डिवाइड बाय OD। तो यही असी प्रूव करना सी, तो ये असी प्रूव कर दिता। तो इस क्वेश्चन दे विच सिर्फ तुहानू स्टेटमेंट दिती हुई सी जिद्दां 7th और 8th क्वेश्चन च सी, और ट्रपेजियम ड्रॉ करना सी। ट्रपेजियम दी तुहानू प्रॉपर्टीज पता होनियां चाहिदियां ने, ते फिर ट्रपेजियम ड्रॉ करन तो बाद असी कंस्ट्रक्शन कीती, तो जो सानू प्रूव करना सी उहनू असी प्रूफ कीता किद्दां विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 10th क्वेश्चन है द डायगोनल्स of the quadrilateral ABCD intersect at each other at point O। तो असी ABCD एक quadrilateral ड्रॉ कर ली, इहदे डायगोनल्स AC और BD नू ज्वाइन करता जेडे O ते इंटरसेक्ट करते हैं। नाल दी नाल एक होर चीज भी गिवन है, की गिवन है AO रेशो OB इज इक्वल टू OC रेशो OD, ठीक है। अगर तुसी पिछला क्वेश्चन ध्यान ना देखो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ABCD ਇਜ਼ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ठीक है। तो जो गिवन है, जो ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ गिवन है, ਇਹਨੂੰ गिवन लिख लिया। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ABCD इज अ ट्रपेजियम लिख लिया। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ ਇੱਕ लाइन ड्रॉ की OP जी कि पैरेलल है AB के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं इन्होंने दोनों के एरो लगा दा क्योंकि ये मैं बाय कंस्ट्रक्शन की कह दिता, पैरेलल कह दिता। हुण प्रूफ देखो, प्रूफ दे विच असी की करांगे, प्रूफ दे विच असी ट्रायंगल जिहड़ी लवांगे वो लवांगे असी ADB। लो ये वाली ट्रायंगल लवांगे, तो इन ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB की आ गया इस ट्रायंगल दे विच, ध्यान दे नाल देखिए जो OP है दैट इज पैरेलल टू AB। क्यों, कित्थों लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो अगर एक ट्रायंगल दे विच एक नवी साइड थर्ड साइड दे पैरेलल हुंदी है ते बाकी दो साइड सेम रेशियो दे विच हुंदियां ने, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तुसी पूरा लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साडे कोले की आ जाऊगा, साडे कोले आ जाऊगा DP डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय OB, ठीक। इत्थे तक पहुंच गए असीं। अच्छा हुण इहदे विच की कर लैंदे आ, इनू थोड़ा जिहा सैट कर लैंदे आ। देखो किद्दां असीं की कीता, DOOB असी चेक किया, जिहड़ा DO ते OB है वो आंदा पिया साडे कोले। जेकर असी गिवन दे विच देखिए, गिवन दे विच साडे कोले दिता होया AO डिवाइड बाय OB इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO गिवन है। इन्हू थोड़ा जिहा सैट कर लैंदे हैं, ये चीज बना लैंदे हैं। की कर लैंदे हैं, DO नू इधर ले आ, AO नू हेठा ले आ, मेरे को आ गया DO डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO, ठीक है। हुण इस चीज नू जो सानू गिवन सी उन्होंने असीं थोड़ा जिहा की कर लिया, मोल्ड कर लिया, अपने अकॉर्डिंगली सैट कर लिया, ठीक है। हुण इत्थों दी देखो नैक्सट की करना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई सी असीं ADB ट्रायंगल दे विच, साडे कोल इत्थे तक असीं पहुंच गए सीगे, ठीक है। अच्छा हुण इहनूं की ले लैंदे आ, असीं ले लैंदे आ टेकिंग inverse on both sides, inverse on both sides, ओके। इनवर्स लैन का मतलब की हुंदा, इनवर्स लैन का मतलब हुंदा उल्टा दो दोनों पासे, तो उल्टा दो। एक ही हो गया साडे कोले PA डिवाइडेड बाय DP इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय DO, पहुंच गए इत्थे तक। अच्छा हुण जेकर हुण इधरों दी असीं की लिख सकते हैं, जेकर इनू भी उल्टा दी असीं लिख सकते हैं OA डिवाइडेड बाय OC, ये सारे इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि DO डिवाइडेड बाय OB एक इहदे इक्वल सी, CO डिवाइडेड बाय OC, तो ये सारे आपस दे विच इक्वल हो गए। हुण इन्हां चों सानू किहड़ी चीज चाहिदी सी वो चुक लैनी, ये तिन्ने इक्वल आ, असीं
इनू ते इनू इक्वेट कर देना और असी लिखांगे की लिखांगे इहदे विच देखिए ध्यान देना असी लिखांगे PA डिवाइडेड बाय DP इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय OC। ठीक है चलो हुण इस चीज नूं ध्यान नाल देखो इहदे विच साडे कोले है PA डिवाइडेड बाय DP या PD इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय OC। तो केड़ी ट्रायंगल हो रही है, केड़ी ट्रायंगल आ रही है, ADC आ रही है। तो इन ट्रायंगल ADC की हुंदा पिया साइड्स दे आर इन प्रपोर्शन, देन लाइन की होणगियां पैरेलल होणगियां, कन्वर्स लग रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दा। सो साइड्स आर इन सेम रेशियो, therefore OP parallel to CD कित्थों by converse of basic proportionality theorem। ठीक है हुण देखो तुसी क्या OP is parallel to CD but जेड़ा OP है it is parallel to AB। कित्थों चेक कर लो जो तुसी कंस्ट्रक्शन कीती सी उदों लिखिया सी कित्थों बाय कंस्ट्रक्शन। तो इको चीज दो साइडा ने पैरेलल है, इहदा मतलब वो सारियां आपस पैरेलल है विच इंप्लाइज OP इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD। हुण सानू किहदी लोड़ है, सानू इस रिजल्ट दी लोड़ है, असीं ये चुक लैने आ विच इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। इहदा मतलब ABCD की हो गया, एक ट्रपेजियम हो गया।